साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर आप जी पिछले दिनों तो इन्हां विशेष गुरमत समागमां दी हाज़री भर रहे हो, जिस विच सतवें गुरुदेव सतगुरु गुरु हर राय साहिब जी हजूर दा आगमन गुरपुरब और अज दा ये विशेष दीवान श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वालों समुची कौम नूं ये संदेश आदेश देंदिया होया कि जितने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान ने भावें संसारी तौर ते राजनीतिक तौर ते धड़े वख होण, पर साके दे संबंध विच सारे मैंबर साहबान अपने अपने इलाके विच 5-5 गुरमत समागम जरूर आयोजित करन। इस विच उन्हां एक गल होर कही, जिथे उन्हां शहीदां दी इस शताब्दी वेले उन्हां नूं याद करना है, उत्थे हर समागम हर गुरुद्वारे इस संगत नूं जरूर दस्या जाए। एक सदी बाद भावें उस धरती ते पाकिस्तान सिख हैं, कोई शक नहीं, पर इसे सिखां नूं इत्थों दे सिखां नूं सरकार ने नहीं जान दिता। ऐन मौके ते साडे सब दे विजय लगे हुए सन, असी पहुंचना सी। एक शाम पहला भारत सरकार ने रोक दिता है। ठीक है, सरकारां बदलन गियां, हुकूमतां बदलन गियां, पर तवारीख इतिहास दी कलम जो लिख के जाएगी इनू कदी सदियां बाद भी नहीं बदलिया जा सकेगा। ये सिखां दे सीने उत्ते लिखिया जा चुका है, इनू कोई नहीं बदल सकेगा। संगत इस कार्रवाई दी सरकार दी निंदा करेगी। सिंह साहब जी ने क्या, आओ पावां के इस है कुछ साडे इतिहास दियां ऐसियां घटनावां ने जिन्हां नूं आपां साका लफ्ज नाल चेते करने। जिवें साडी जबान ते है साका सरहंद जां साका सरहिंद, जां असीं पढ़ने साका चमकौर साहिब। एक शब्द साडी तवारीख विच होर है, सब दी जबान ते चढ़िया, वह है घल्लूकारा। ये दो लफ्जां दे अखरी अर्थ जानने साडे लिए बहुत जरूरी ने। एक साका शब्द और एक घल्लूकारा। इस विच असीं जदों साके दी गल करने आ, मैं अर्ज कीती चमकौर साहिब सरहंद दा जिक्र करने आ। जदों असी घल्लूकारे दा जिक्र करने आ, असी दो शब्द वरते सा, छोटा घल्लूकारा, वड्डा घल्लूकारा। और 84 विच जो कुछ भी वापरिया, कुछ सिख ओदे लिए भी शब्द वरतन लग पे भी घल्लूकारा। पर श्री अकाल तख्त साहिब ने एक नाम दिता, भुलियो ना, वो साल सिखां दी नस्ल कुशी दा साल है 84। पर मैं आपनू बेनती करा, जिहड़ा घल्लूकारा शब्द है, इस दे लफ्जी अर्थ ने बर्बादी, तबाही,
ਜਾਂ ਸਰਬਨਾਸ਼। ਇਸ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਬਾਹੀ, ਸਰਬਨਾਸ਼, ਬਰਬਾਦੀ। ਉਂਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਾਰਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ। ਗਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਨੇ ਆ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਸਾਕਾ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਅਰਥ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਨੇ ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਖਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਖਾਓ ਆਖ ਨਾ ਸਾਕਾਂ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਕੇ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਨੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ICS, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ। ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਆਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਤਾਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾਪਨ ਬਖਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਤਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਚ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਓੰਕਾਰ ਹੈ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਹਾੜਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਵਚਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦਸੇ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਿਆਵਾਚਕ ਸਿਰਫ 1 ਹੈ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, 1 ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ
ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਬਾਣੀ ਚ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एक अंकारा। एक अंकार एक अंकारा। पर इत्थे असीं उच्चारण करने एक ओंकार। मैं बेनती करा जिहड़ा शब्द है अखरां दा जोड़ है शब्द, चलो एक शब्द अर्थ है ना बाणी। आप सारे पढ़े लिखे इस गल नूं समझदे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी विलक्षणता है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। इस बेनती फिर मान लो शब्द है गुरु, जे कोश विचों वेखोगे तो बड़े अर्थ निकलने, उस्ताद जां टीचर मास्टर सिक्ख्या देने वाला। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब च अर्थ वेखोगे इहदे परिभाषक अर्थ दो रूपां च मिलणगे, एक विच सच्चे गुरु दे रूप विच, एक विच गुरु दे कच्चेपन दा जिक्र होवेगा। जिवें मान लो गुरु कौन है, जां सतगुरु दे अर्थ ने सच्चा गुरु, अखरी अर्थ ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब परिभाषक अर्थ देंगे कि सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका ना हो। हुणे डिक्शनरी थोड़ा है तो परिभाषक अर्थ ने जी जिन्हें सतपुरख नूं जानिया। फिर बेनती सुनियो, असी शब्द कहांगे ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी दा लफ्जी अर्थ है वे ब्रह्म नूं जानन वाला, पर गुरु ग्रंथ साहिब सिद्धे अर्थ करनगे मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एक बिन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए। परिभाषक अर्थ ने मैं तां बेनती की, आप बहुत सूझवान बैठे हो। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जेडे ने वो अपनी व्याख्या आप करते हैं। हुण शब्द है, हुण शब्द का कोई एक अर्थ थोड़ा है। असी चलो गुरमुखी विच पूरा बब्बा लिखिया जाता है, हिंदी विच आपां अद्धा अद्धा बा बोलिया जाता है, शब्द ते शब्द। हुण कल्ला शब्द ही जेड़ा है इहदे अर्थ सारे गुरबाणी थोड़ा ने। जिवें असी पाठ करने हैं, उंज मैं एक दिन अर्ज की सी, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब हजारां शब्द ने, पर सिर्फ 3 थावां ते सतगुरां ने खैडिंग शब्द दिता है, बाकी किते भी नहीं दिता। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ 3 थावां ते सरलेख है शब्द, वो भी तिन्ने मारू राग विच। मारू राग शुरू हुंदा है, श्लोक हुंदा है साजन तेरे चरण की होए रहा सतुर। ये श्लोक 2 वारी हुंदा है, ये गुजरी की वार च भी हुंदा है, उथे महला 5वां है, इत्थे महला लिखिया साजन तेरे चरण की कोई राह सतूर, नानक शरण तुहारिया पेखू सदा हजूर। अगे है शब्द, इत्थे पहली बार हेडिंग आया सस्सा बब्बा ते दद्दा शब्द। महाराज कहंदे ओ शुरू हुंदा है पिछों राती सदना नाम खसम का ले, एदा सरलेख शब्द है। दूजी बारी अगे जाके हुंदा है शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन शह की ये बात सुहेली। तीजी बारी मारू राग चाहुंदा है कबीर का शब्द, नामदेव जी दे शब्दां दे नाल। मैं बेनती की गुरु ग्रंथ साहिब च खैडिंग शब्द 3 बारी आया। हुण शब्द दे अर्थ यही साडी एक प्रॉब्लम है, जेडे बाणी नहीं पढ़ते ना, आ गुरुडम जिन्हों असी रौला पाने इन्ना कुछ। असलीयत ये वे जदों बाणी दी समझ कोई नहीं ते साडी भावना नूं लोक लुटदे आ, गुरु दी तुक दा हवाला दे के सानू पीछे ला लैंदे। जे शब्दां दे अर्थ पता होए फिर पता लग जांदा चलाकी कर रहा। हुण लफ्ज मैं अर्ज कीती शब्द है, शब्द दा एक अर्थ नहीं। हुण इत्थे जिहड़ा है शब्द सिखो, शब्द प्यारिओ, जन्म मरण कीते कि इत्थे शब्द दा अर्थ है गुरबाणी। जदों असीं पाठ करने आ घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल, उत्थे शब्द दा अर्थ है जीवन करैक्टर। जदों असीं पढ़ने अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द, उत्थे शब्द दा अर्थ है बोल। जदों असीं हजूर दी बाणी दा पाठ करने अनहता शब्द वाजंत भेरी, ओदा अर्थ है अनहद शब्द। मेरी सिर्फ एक बेनती है, बहुत अर्थ ने जी शब्द दे, पर गुरु साहब ने की कृपा की
उन्होंने ओंकार तो पहला एक अखरा च नहीं लिखिया, क्योंकि इसका कारण सी अंत नहीं सतगुरु दे सुरत दा, क्योंकि शब्दां विच ईड़ी नूं सिहारी कक्का लिख दे ते पता नहीं अज की अर्थ बन जाते। क्योंकि ओम जड़ी धुनी है ये एक अर्थ नहीं, बहु अर्थ ने। ये त्रै देवतियां दा भी कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश दा सूचक है। यह भी कहा जाता भी गले तो जदों शुरू करने ओ ते अखीर ते जिहड़ी साडियां धुनियां चो शब्द वरदे ने, बुल बंद करिए ते मां बनदा है। वो कहने गले तो लैके ते बुल्लां तक जदों ओम कहने सारियां धुनियां इहदे विच ही समा जांदियां। ये विवेकानंद जी ने लिखिआ है अपनियां किताबां विच। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा, जिन्नी को समझ है शब्द अर्थ बदलेगा। हुण मैं एक शब्द वरतिया, एक नूं कक्के नूं औंकड़ लगी, एक वचन है, कक्के नूं सिहारी लगी, बहुवचन है। इत्थे सतगुरां ने गिनती, मैं क्या संज्ञावाचक एक लिखिया है अंक विच, क्योंकि अखरां दा शब्द अर्थ बोल बदल जाता है। मैथ पढ़न वालियां नूं पता है अंक कदी अर्थ नहीं बदलदा हुंदा। इत्थे सतगुरां ने एक लाख के लिख के कह दिता, सिर्फ एक होर दूजा कोई नहीं। मेरी बेनती है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विचों मैं अर्ज की, इत्थे सतगुरां ने साडे ते बख्शिश की। मैं फिर थोड़ा जा इस संबंधी कि जिहड़ा शब्द है तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, उन्हां दा इत्थों विचों निकलिया स कथा चो, उन्हां दा हर एक नूं हक है। इस धरती ते कोई भी हाकम ये भरम ना पाले मैं एक धर्म क्या से मंगा, एक धर्म एक किताब एक मजहब नहीं। रब दी बनाई कोई रचना विच एक पत्ता दूजे नाल मेल नहीं खांदा। जे कादर ने अनेकता पैदा की है, दुनिया दे बंदे कोल कादी ताकत है कि इस अनेकता नूं एकता विच कन्वर्ट करे। अनेकता है पर इस अनेकता विच धुर अंदर एकता है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। अनेकता है, पानी है, बुलबुले ने, लहरां ने, अनेकता ही है ना पानी दी, तीन रूपां च है। पर इस अनेकता विच भी पानी बुलबुला ते लहर, इहदे विच एक पानी ही वरतदा पिया। सतगुरां ने कहा कि असीं सोने दे गहने बनाने, अंगूठी होवे, चूड़ी होवे, गल दा हार होवे, वख वख ना रख लो, रेट वख रख लो, पर एक नाल तुरिया जाएगा। सोने दे अनेक गहणियां विच एक सोना जरूर रहेगा। मेरी बेनती है उसकी बनाई कोई अनेकता है। हजूर सच्चे पातशाह जी ने ते शब्द वरतिया उन्हां दा राखा, इहदा मतलब सी धर्म दी स्वतंत्रता। दूसरी मैं बेनती करा, एक है धर्म हेत साका जिन किया। इत्थे साका धर्म हेत, ये सरदार कपूर सिंह कहते सन धर्म दी रखिया है कि मता कोई समझे कि धर्म नाम दी कोई चीज नहीं, फोकियां फिलोसफी ने, एवं लेक्चर ने। गुरु तेग बहादुर ने अपना सीस दे के चौंक विच खलो के दस दिता, भलियो धर्म केवल जबानी कलामी नहीं हुंदा, धर्म वाला हस के अपने शरीर नूं ठीकरा समझ के मालिक दे हाकम दे सिर ते पां दिंदा। ये धर्म शब्द दी रखिया है। फिर बेनती सुनो, जिवें असीं कहने ना बाबा जी दा एक शब्द है, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रिया। क्या मारे ने भी धर्म नाम दी कोई चीज नहीं, क्योंकि वह धर्म सी उदों, हिंदुइज्म सी, जोग मत सी, मुसलमान सी, पर गुरु कहंदा धर्म उड़ गया। ਇਹਦਾ मतलब धर्म सिर्फ चिन्ह रह गया ते जबान दियां गल्लां रह गया, हकीकत च नहीं। पर गुरु तेग बहादुर ने हकीकत दस दिता। बंदिया एक पासे धर्मी खलो जाए ते सुल्तान पूरा जोर ला लै, वो ठीकरा बन सकदा पर कदी उन्हों धर्म तो डुला नहीं सकता। इसे करके धर्म हेत साका है। इत्थे हिंदुइज्म नहीं किया, उथे क्या तिलक जन्यू राखा प्रभता का। ते तीसरी गल आत्म पुरख की गौरवता। ਇਹਦਾ मतलब जिस जगह तक ब्रह्म ज्ञानी परम पद च पहुंचा, उच अवस्था च विचरदा है, जे ओदी अवस्था नूं मौत हाकम जालम डरा के अवस्था तो थले सट लवे, वो फिर अवस्था नहीं हो सकती। अवस्था वो है जिन्हों दुनिया की कोई भी ताकत डुला ना सके। ओनू गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, सीस दिया पर सिर ना दिया। सिर दा अरबी दा शब्द है,
चलो असीं इहदे अर्थ सिरड़ भी करने आ, सिदक भी करने आ। सिरड़ दा अर्थ है कि जिन्हों सतगुरु कहंदा जो नर दुख में ओ अवस्था, उस अवस्था तो कोई थले ना सट सके। मैं बेनती करा शब्द वरत्या साका, घलूकारे दा अर्थ बर्बादी, सर्वनाश, तबाही। साका दा अर्थ है इतिहास विच ओ वापरी कोई घटना ਜਿਹੜੀ सदा वास्ते सदगुणा वास्ते सदीव काल ਲਈ जिंदा रह जाए। फिर बेनती साका दर ते इतिहास विच वापरी घटना ਜਿਹੜੀ विशेष थान रखदी होवे। ਅਸੀਂ वैसे ननकाना साहिब दे साके नूं रोज चेते करने, तुसी भी कर दिओ, मैं भी करना, ग्रंथी साहिब कर दिया, दरबार साहिब कर दे। मैं कई बारी कहना हुन्ना कि अरदास साडे विद्वानां ने ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 1936 1945 च ਜਿਹੜੀ ਬੰਤਰ अरदास की रहत मर्यादा च बनी, प्यारिओ चेते रखियो ये अरदास सब कुछ अपने विच समेटी बैठी है। हुण आपां कहांगे जी ते सदी बाद याद कर रहे हैं, नहीं, मैं तुसी रोज चेते करने आ। जदों आप जी ये सतरां पढ़दे हो कि जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीस दिते, वेखो इत्थे शब्द फिर धर्म हेत है, धर्म हेत साका है। रोज दुनिया लोग रोज मरदे पे आ, ठगियां मारदे मरदे आ, लड़ाई करदे आ मरदे आ, पर धर्म हेत जिहड़ा मरदा है प्यारिओ चेते रखो साका ओदा ही हुंदा। धर्म हेत जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई आ ननकाना साहिब चेते आ जाता। इत्थे तरन तारण साहिब उत्थे उत्थे क्यों नहीं लिखिया भी ननकाना साहिब कहदा लिख देंदे, पौंटा साहिब शहीद होए ये लिख देंदे, पंजा साहिब लिख देंदे, तरन तारण साहिब लिख देते। उन्होंने बड़ी संकोच में शब्द वरते, भावें अज भी कोई गुरुद्वारे दी पवित्रता लई शहीद होवेगा, अरदास विच उसे दिन ही उहदी शमूलियत हो जाए। ये जिहड़ा शब्द दिता फिर सुनियो, उत्थे असी जदों कोई खोपरी का जिक्र करे साडे सामने इक्को नाम हुंदा है भाई तारू सिंह जी, जदों आरे का जिक्र चले भाई मती दास जी, बंद बंद कटाउण का जिक्र चले तो साडे सामने भाई मनी सिंह जी, चरखड़ियां का जिक्र चले तो भाई शाबेग सिंह, भाई शाबाज सिंह जी। अरदास विच उन्हां नाम नहीं लिखिया, क्योंकि अज असी देखने कई थावां ते अरदास इन्नी लमेरी हुंदी है, मेरा ख्याल है अरदास नूं 5 मिनट लगते हैं तो मंगा पढ़न वास्ते 15-20 मिनट लग जाते, तो बेचारा ग्रंथी डरदा डरदा ना लेंदा भी किसी का रह भी ना जाए, कि शामत ना आ जाए उदों बाद, क्योंकि वो धक्का है ना जी। तुसी देखो ये बैठे ने भाई जमीर सिंह खेड़ा जी, मैंबर श्रोमणी कमेटी, सारे वीर, भाई सरबजीत सिंह सोल, बीबी रजिंदर कौर। तुसी कदी अरदास हरमंदर साहिब दी एक एक शब्द समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, ਇਹਦਾ मतलब की है? ਉੱਥੇ ही ਕਹਿੰਦੇ, चलो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ नहीं ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ भी चाहो हरमंदर साहिब रोज ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ भी ਦੇਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮਾਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦੇਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਕੇ 69 ਸਾਲ गुरबाणी कीर्तन दुपहरे का बिना नागा किया। बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले, मैं बेनती करा सिर्फ अमृत वेले देग, जदों कहंदे समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, पहला महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र हुंदा सी, पर मैं कहंदे इन्ने सोहणे शब्द दे दिते, देग भावें कोई 5 रुपये की रोज कराए, इत्थों तक भावें 2 रुपये तेरे रोज जान, उत्थे बिल्कुल नहीं लिखिया कि 1000 वाले का नाम लो दूजे का नहीं। नहीं प्यारे, उत्थे इक्को शब्द वर दिता, समूह संगत अते टहलुआं दी अरदास, ये सारे आ जाते हैं। हुण आ जिहड़ा शब्द है अरदास का, यह पहरा, ये शहीदां नूं कदी भी कोई शहीद पावा, मैनूं पता है 84 विच तसीहे देण दे तरीके बदले गए, चरखड़ी नहीं, पर तुहानूं सब नूं पता है मुगल हकूमत वेले 18 तरह के तसीहे सन। रतन सिंह भंगू कहता 18 दे 18 सिखां ने सहे, 18 दे 18, जिवें पानी च डोबना, हाथी पिछे बन के पाड़ना, जंबूरां नाल मांस खिंचना, बोटी बोटी कर देनी, चरखे, 18 दे 18 तरह के तसीहे
सच्ची मुची सिख कौम ने सहे ने। हुण समा बदल गया, ए समय च अपने ढंग दे तसीहे दिते गए, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬ ਸਬਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਚੀਥੜਾ ਚੀਥੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। मैं उस दिन भी मंजी साहब बेनती की सी। एक तो श्रोमणी कमेटी के जिम्मेवार बंदे तुसी बैठे हो सज्जन, शहीदी जैवन किताब वड्डे पद्धर ते छपाओ। 1938 च किताब छपी सी, सरदार गुरबख्श सिंह शमशेर झबालिया। मेरा ख्याल इस तो वध कोई किताब होर नहीं जिहड़ी ननकाना साहिब दे इतिहास नाल इंसाफ कर सके। उंज मैनूं पता है सरदार सोहन सिंह जोश का अकाली मोर्चों का इतिहास है, पर थोड़ा जिहा अकाली मोर्चे ते झब्बर ये किताब है सरदार नारायण सिंह जी की लिखी, जिहड़े ननकाना साहिब के मैनेजर रहे। पर ये भी झब्बर का ज्यादा जिक्र है। चलो वो एक बड़ी वड्डी उन्हां दी कुर्बानी सी, पर मैं आप नूं बेनती करांगा शहीदी जीवन प्लीज जरूर पढ़ियो। जिन्ने सिख गए ने एक एक सिख का उन्हें तकरीबन जो समग्री लभ गई उसका जिक्र किया। मैं उस दिन कहा सी साका क्यों वापरिया। गुरु साहब के वेले कई शब्द ऐसे मिलते हैं, आप कहांगे जी महंतां वेले गुरु साहब ने गुरु नानक साहब जी का एक शब्द कहे, कहते ने जदों धर्म स्थान भ्रष्ट हो जाए उदों कौमां खत्म होने लग पैंदियां। ये याद रखियो। जदों धर्म स्थान ते बैठा बंदा, मैं कल्ले मैंबर नहीं, मैं उस दिन भी कहा कला श्रोमणी कमेटी नहीं, हर गुरुद्वारा हर प्रचारक। क्योंकि जे तुसी इधर कहो जी ये बच्चे एदा परिवार एदा मां प्यो, मैं तो इको गल करना सिक्खी दी गल कर लग्या। केवल एक जिंद दी गल करो, कर्म आपो अपने ने, कर्म किसी ने दूजे दे भुगतने नहीं। कर्म आपो अपने। गुरु हर राय साहब का बेटा राम राय तुसी सुनिया ही होना है, अब 2 दिन इन्ने सियाणे इन्ने सुगड़ तिलकन लग्या कोई पता लगा कि उन्होंने शब्द सिर्फ जबानी बदल दिता कि मुसलमान की थां ते इत्थे बेईमान सी, यही शब्द वरत्या ना। पर गुरु साहब ने उन्होंने नहीं स्वीकार किया। मैं आप बेनती करा, गुरु साहब का एक शब्द है, काल ना ही जोग ना ही सत का टब था नष्ट जग भ्रष्ट होए। था नष्ट का अर्थ हुंदा पूजा वाली थां, धार्मिक स्थान। था नष्ट जग भ्रष्ट होए, डूबता इव जग। कहते ने उदों जगत डुबदा है, संसार डुबदा है जदों धर्म के सोमे ते बैठे हुए लोगों का जीवन भ्रष्ट हो जाए। दूसरी बेनती गुरु ग्रंथ साहिब च मैं बेनती करांगा, एक फरीद साहब का श्लोक आउंदा है, जेड़ा बंदा ये जदों मार पैंदी है ना, याद रखियो जिन्ना मर्जी कोई गुरु घर का खा लै, अखीर ते एक टका भी कल्ले नहीं जा पल्ले नहीं जाना। पर जिहड़ियां बेईमानियां कीतियां ने इहदियां पंडां जरूर तेरे नाल जाणगियां। खाली तो कोई दुनिया च गया ही नहीं जी, कोई बंदा खाली नहीं गया। फिर बेनती सुनियो, आपां कहांगे किस कोई चीज नाल, मैं कहना कोई चीज नहीं नाल जानी। जेड़े रुपये हेरा फेरी करके गलत बिल भर के तू कीता, वो रुपये तां तेरे घर तुर जाणगे, पर जेड़ी तेरी बिरती हेरा फेरी वाली मन च पैदा होगी अगले जन्म भी तेरे नाल जाए। अवगण थोड़ा रुक जाना है। गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन मारे ने क्या, कौन कहंदा खाली जाना।
गुरु साहिब का एक बचन हुंदा है, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच से दरगह आए, कम जो कोई तू कीता विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है। जे सेव कमाई है दरगह बैसन पाई है ते चेते रखियो, जे गुरु दी सेवा दे नां ते पाप करिए ते रब दी दरगाह विचों धक्के भी पैंदे आ। चाहे मैं होवां चाहे तुसीं होवो, मैं आप नूं बेनती करांगा कि धर्म स्थान सानू अंदर दी ठंड दिंदे आ, शांति दिंदे आ, क्योंकि सारे धर्म स्थान मैं किसी नूं निंदांगा नहीं, दियोरा है, मसीत है, मंदिर ने, पर एक गल चेते रखियो, गुरुद्वारे दी विलक्षणता जे इनू याद रखो, गुरुद्वारे दी विलक्षणता। पंथक रूप च मैं एक दिन अर्ज कीती सी कि साडी अरदास वल फिर ध्यान जांदा है। जदों ना ये बंद दिता ना, पंजां तख्तां अगे की लिखिया सरबत गुरुद्वारे, ये कल्ले श्रोमणी कमेटी वाले गुरुद्वारे नहीं। सरबत दा अर्थ केवल इतिहासक नहीं, एक पिंड विच कच्ची मिट्टी दा बनया होया ढारा, ढारा शब्द समझदे हो आप ना, नहीं शब्द पैना ढारा, कच्ची मिट्टी दी बनी हुई झोंपड़ी, हाँ जी, ओदे थल्ले भी जे प्रकाश कीता वो भी सरबत गुरुद्वारे विच आ जांदा। ते जे लंडन दा साउथ हाल दा गुरुद्वारा अरबां रुपइयां दा बनया वो भी विच आ जांदा। देखो जिहड़ा सरबत गुरुद्वारे शब्द है, यह भी सानू फिर एक सूत्र विच बन दिंदा। गुरुद्वारे इतिहासक दी ते महानता है, क्योंकि जिथे सतगुरां दे चरण पै जांदे आ, कीर्तन हुंदा है, पाठ हुंदा। मैं पिछले दिन भी कहा सी कि सिखो कदी भी गुरुद्वारियां नूं राजियां दियां बणियां होईयां इमारतां नाल तशबीह नहीं देनी। लाल किले नाल कदी सीसगंज का मुकाबला लाल किला कर जूगा? वो जेड़ा छित्तर वाला आया लाल किले नूं झुका गया, पर सदियां हो गईयां ने, गुरु तेग बहादुर दे सीस विच निशान साहब लगा, कोई दुनिया की ताकत नूं हटा नहीं सकी। इनू सुनियो, बादशाह दियां बणियां होईयां इमारतां नाल गुरुद्वारे नूं ना तुलना दिओ। सच एवे उन्हां किलियां विचों, उन्हां महलां विचों जिन्हों अजूबा ताज महल कहंदे हो, ओदे पत्थरां विचों मजलूमां गरीबां ते मजदूरां दे अखां दे अथरू ने। यही कारण कि पूरन सिंह ने कहा सी कि ताज महल अंदर मौत दी खामोशी है, हरमंदर साहिब विच मरिया होयां नूं जिंदगी मिलदी है, इहदे विचों जीवन मिलदा है। पर हरमंदर साहिब किसी मुर्दे का पाठ नहीं हो सकता। सिंह साहिबां नूं पता है उत्थे किसी मृतक का पाठ नहीं हो सकता। हरमंदर साहिब अंदर एक जिंदगी है, रूहानी जीवन है। यही कारण जे कहो जी कला गुरु जोत की कृपा है, तुहाडे कोल मान लो इत्थे अंब साहिब कीर्तनीय कीर्तन करदे हो, तुसीं 10 साल तो सुनो, उन्हां दी हरमंदर साहिब लग जाए ड्यूटी ते 2 महीने बाद कहन लग पोगे शब्द तो ही पढ़ते हैं, पता नहीं कीर्तन च बड़ा रस आ गया। नहीं, उत्थे गुरु रामदास दी अगम्मी खेड वरती है, सतगुरां दी उत्थे एक ऐसी बख्शीश है जिहड़ी खिंडे हुए मनां नूं टिका के रख दिंदी है। मैं आप नूं बेनती करांगा कि गुरुद्वारा भावें पिंड दा होवे ते कदी गुरुद्वारे दी इस तरह नहीं करना जिवें कई सानू ही आउंदे ने, भाई साहब जी साडा गुरुद्वारा बड़ा वड्डा जे। मैं पूछना उन्हें इमारत करके, गोलक करके कि संगत करके? जे ये परिभाषा है कि साडे गुरुद्वारे भाई साहब जी इटालियन पत्थर लगा है, वो इसे च तुरे फिरदे आ। इटालियन पत्थर ते इत्थे तुहाडे पब्बां क्लबां विच लगा, वो की महानता होई? इत्थे तां बस गुरुद्वारे दी महानता ये होनी चाहिए जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोवा, उथे गुरु दी गल होवे। मैं आप नूं बेनती करांगा कि 1 सदी असी तकरीबन बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत तो लैके शेरे पंजाब दे राज तक कदी सिख मिसलां च आ जांदे, कदी इलाके च कब्जा कर लेंदे सन, पर धर्म अस्थानां दी जिहड़ा सेवा सी निर्मले और उदासी साधुआं कोल सी। पर सब नूं निंदिए ना, उन्हां दा बड़ा वड्डा योगदान सी। पर यह भी सच जे जेड़ी लहर सुधार लई उपजदी है, कुछ सालां बाद वो भ्रष्ट हो जाती है। यह कुदरत दा नेम है। जेड़ी गंगोत्री चो गंगा निकलती है, समुंदर दे जांदियां जांदियां पूरे तक है मैली हो जाती है।
ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਸੰਦ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੂਨੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਕਹੀ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਨਿਕਪਟ ਕਮਾਵੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪਾਪ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾਸ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਨ, ਗੁਪਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਜੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੋਟਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਨਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ। ਤੀਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਗਤ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 4 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਝੰਡੇ, 3-4 ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀੜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਕੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਹੈ ਯਾਤਰੂ, ਇੱਕ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲਤਾ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕੀਆਂ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਡਰੌਲੀ ਗਏ ਮਾਲਵੇ ਚ, ਪਹਿਲੀ ਚੌਕੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚ ਗਏ ਫਿਰ ਚੌਕੀ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ 4-5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਕਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜੂਗੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਨਿਆਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੌਕੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਕੀਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀਆਂ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲਾਲਟਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬਾ ਮੇਰ ਕਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੌਕੀ, ਵੈਸੇ ਚੌਕੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੌਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਬਟਪਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਉਹ ਆ ਜੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਕਿਹਾ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਠ ਲਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੱਜਾਏ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1704 ਮਨਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾਲੋ ਵਾਲੀਆ 62 1700 ਉਹ ਫਿਰ ਹਲ ਵਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਬਲਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 84 ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਰ ਰਹੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੱਢੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੌਕੀਆਂ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ,
गुरु पंत महाराज के। तीसरी मैं बेनती की बूंगे। आप सब नूं पता है बूंगे दा अर्थ उच्ची इमारत असीं कहने, असल च बूंगा वो है जिवें अज सरां है, दवाखाने ने, विद्यालय ने, उदों सारा कट्ठा प्रबंध बूंगियां च हुंदा सी। ते दरबार साहब बड़े बूंगे सन। निर्मलियां दा बूंगा, उदासियां दा बूंगा, रबाबियां दा बूंगा, ज्ञानियां दा बूंगा, रंगरेटियां दा बूंगा, रामगढ़ियां दा बूंगा, अकालियां दा बूंगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ कि सिख धर्म ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ सिखी ਦਾ प्रचार ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। मैं अर्ज करा फिर निकल लगा, गुरुद्वारा हर हुकूमत नूं चुभेगा, क्योंकि इत्थे केवल आरती नहीं उतारी जाती, इत्थे पूजा पाठ सिमरन कीर्तन सब कुछ हुंदा है। ते जदों कोई जालम चढ़ के आउंदा उदों फिर प्रोग्राम भी गुरुद्वारियां विचों दिते जांदे। ब्रिटिश हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं सी कर सकती। उन्होंने पता सी भी गुरुद्वारा सुधार लहर, महात्मा गांधी गए कुछ दिनों बाद, उन्हें कहा भी ननकाना साहब दा साका ये असल विच हिंदुस्तान दी आज़ादी दी पहली जित है। उन्होंने पता सी। मैं उस दिन बेनती की कि महंत नारायण दास ने जो ने पाप किए, प्यारो एक तो मैं सारे कमेटी नूं मैं कहा प्लीज ये गल बिल्कुल क्लीयर करो भी 20 फरवरी से उस दिन जिदन साका होया सी, 21 फरवरी नहीं सी। साडे बजुर्ग सन उत्थे, मेरे दादे दा सक्का भरा तेजा सिंह चूड़काना साडे घर च दसदे रहे आ। असी सानू 10 फग्गण दसिया, 20 फरवरी ते असीं कहने, मैं कहना सीधा कहो 10 फग्गण, 11 फग्गण, 12 फग्गण ते 13 फग्गण। जरूर असीं अंग्रेजी कैलेंडर नूं अगे लैके तुरना। तुसीं सारे बैठे हो सूझवान, वेखो जे असी 6 पोह तो लैके 13 पोह तक उंगलों ते गुणिया, हाँ जी, 7 पोह 6 पोह रात नूं महाराज ने किला छड्डिया, 7 पोह नूं परिवार विछोड़ा, 8 पोह नूं चमकौर साहब जंग हुई, 13 पोह नूं शहीद होए साहिबजादे। ते क्यों नहीं इन्हां नूं चेते रखदे 10 फग्गण, 11 फग्गण, 12 फग्गण ते 13 फग्गण। ये 4 दिन घटनावां वापरियां ने। ये उस दे कुकर्मां दा तुहानूं पता है कि उस बंदे ने दरबार साहब ननकाना साहब की हदूद विच उन्हें लाहौर तो वेशवावां लिया के नचाइयां सन। उत्थे शराब का दौर चलिया सी। मैं फिर बेनती करा, उत्थे एक सिंधी जज, मैं उस दिन भी कहा सी, रिटायर होके आया ते सिंधियां दी शरदा नूं नमस्कार। अज भी जदों असीं पाकिस्तान में सिंध जाके कथा करन करके आए, जिस घर च मैं रुकिया सा, शायद वो सुनते भी होण नैट ते, उत्थे प्रोग्राम शुरू करते हैं रात 12 बजे ते सवेरे 7 बजे तक चलते हैं। उन्हां दियां बच्चियां ने सानू प्रशादा पानी साडे परिवारां दी संभाल करनी। असां कथा करके उन्हां 8 घंटे सेवा करके 7 घंटे सवेरे आउणा, इशनान करके नितनेम करके फिर मंजे ते जाना। हर बच्चा उन्हां दा कीर्तन करदा है। मैं जिस घर च रुकिया उहदा बच्चा उहनूं सरदार जी कहंदा, आप नहीं सी साबित सूरत। तो मैं पूछा तू न्याणे अपने सरदार जी कहंदा मेरियां बेटियां सन। जदों छोटी बेटी हुई कहंदा मेरे मन च कोई नहीं बिल्कुल भी। कहंदा मेरी स्त्री मेरी घर वाली उहदे मन च आया थोड़ा जिहा। मैं इक्को गल कही, एक काम कर दरबार साहब चलीए। दरबार साहब करतारपुर नूं कहंदे ने, उत्थे दरबार साहब चलीए। उत्थे अरदास कर लगे। मैं क्या जे दरबार साहब आई है, पुत्र तेनू गुरु नानक जरूर देगा, पर सिख गुरु नानक दा बनाई। उन्हां बच्चे दे केसां नूं हथ नहीं लाया। मैं उस दिन क्या उन्होंने, मैं भाई मोहन देख तेरा पुत्र सी, सारे तुसी सरदार जी कहंदे हो, ते जे तू साबित सूरत हो जाए तां ये गुरु गोबिंद सिंह दी दात है। प्यारिओ याद रखियो किड्डी वड्डा सन्मान दिता है। ये तो हुण असीं साडे च गंदी राजनीति ने कर दिता, रविदासिया है, रामगढ़िया है, ये जट है, अरोड़ा है। नहीं प्यारिओ, इत्थे जिन्ने किरपान पाई गुरु दा अमृत छकिया वो सरदार जी है गुरु दा। महाराज नूं सरदारी दिती है, ते सरदारी मिलती है सिर दे के। इहदा लफ्ज भी सिर दे के सरदार बनाया। उत्थे सिंधी जज आया, उन्हें ये अरदास की सी, जिदन मैं बिल्कुल किसे दाग तो बिना बिल्कुल पवित्र, मेरी नौकरी ते कोई दाग ना साबित हो, मैं साबित निकल गया, ते पहली रात मैं गुरु नानक साहब दे घर जाके रहांगा। वो सिंधी जज रिटायर होया।
अपने परिवार के 35 जी के लैके आया। वो सारे इधर सोदर रास का पाठ हो रहा सी ते उसकी 13 साल की बेटी का दूजे पासे जबर जनाह उहदे नाल हो रहा सी। उहदी पत लुटी जा रही सी। वो बच्ची रह रस के पाठ तो बाद रोंदी आई। उन्हें प्यो नूं कहा वापस चलीए, मेरी पत मिट्टी च रोल दी। महंत बैठ के बैठा सी। उन्हें कहा कुड़ी नूं पकड़ो, ही शब्द कह कहंदा कुड़ी नूं अंदर लै जाओ दोबारा। जज रोवे, कहंदा जे रौला पाया कुड़ी भी मारांगा, तुहानूं भी मारांगा। जे भला चाहते हो तो सवेरे जदों तुसीं जाना, कुड़ी तुहाडी बेटी तुहाडी, चलो उन्हें कुड़ी शब्द वरतिया, उस बेटी नूं मैं ननकाना साहिब स्टेशन ते पहुंचावां। प्यारिओ परिवार सारी रात अंदर नहीं रहा। बोर्ड हुण बोर्ड नहीं हैगा। साडे बजुर्ग दसदे सरोवर के नेड़े बोर्ड सन, उन्हां बोर्डां दे थल्ले सारी रात सिंधी रोंदे रहे। सवेरे उस बच्ची नूं स्टेशन ते दिता गया। उसे साल जड़ां वाले तो कुछ लायलपुर तो चल दसदे आ 6 बीबियां आईयां पूर्णमाशी नूं। रात गड्डी निकल गई, उन्हां 6 बच्चियां दी, बेटियां दी, धीआं दी, बीबियां दी पत लुटी गई। भाई वरियाम सिंह इशनान कर रहा सी, उहदा गातरा ला के उहदे केस पुट्टे गए। सरदार लक्ष्मण सिंह उन्हां दा पिंड तां धारोवाली इधर है ना, जिथे आपां मनाया। इन्हां नूं मरब्बे पए सन। इन्हां दे पिता जी सरदार मेहर सिंह नूं मरब्बे मिले सन बार विच। फिर इन्हां ने अपने पिंड दा नाम धारोवाली उत्थे जाके रखिया सी। ये जथा उत्थों तुरदा ना कि गुरदासपुर तो, क्योंकि इत्थे भी थोड़ा जिहा भुलेखा पै जांदा, इधर भी धारोवाल है। उस फिर सिंधी जज ने जाके सिखां कोल पुकार की। मैं आप नूं बेनती करा, उस दिन भी कहा सी, श्रोमणी कमेटी मास्टर तारा सिंह हुणी मजीठीए, सरदार सुंदर सिंह जी मजीठीआ, हरबंस सिंह जी अटारी, चलो सारे ना की, करतार सिंह झब्बर इहदे नाल गलबात करदा सी महंत, पर शातर बड़ा सी, उत्तों उत्तों समझौते कमेटी ना करदा सी। तां ही कहने हो सिखो बंदे माड़े हो सकते। सिंह साहब उदन क्या सी, जे तुहाडी श्रोमणी कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल मर गया ना, चेते रखियो सिखां दी जमात मर जाएगी। मैनू ये ना समझो मैं किसे पार्टी का, मैनू पता है साडे बजुर्गों का खून लगा इस कमेटी के थले। दास्तान मैं संखेप जी तुहानूं सुना देनी। प्रिंसीपल माड़ा होवे, गुरुद्वारे दे गेट कॉलेज बंद ना करो, प्रिंसीपल बदलिया जा सकता है। संस्था के बंदे बदले जा सकते हैं, संस्थावां एवें नहीं बनदियां। शेरे पंजाब की जथेबंदी टुटी ते राज खेरू खेरू हो गया। जथेबंदी बड़ी मुश्किल में बनती हुंदी है, पर साडी ते अरदास है सतगुरु सानू पूर्ण भरोसा है, साडे करके नहीं, तेरे बोलां करके, तेरे पंथ की हमेशा जय जयकार ही होवेगी। तेरे करके 4, 5 ते 6 मार्च 1921 नूं ननकाना साहब एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये साके का जिहड़ा मुੱਢ ਵੱਜਦਾ है। इस विच महंत ने कहा मैं तुहाडे नाल गलबात करांगा। झब्बर नूं कहंदा मेरियां 3 गल्लां ने। पहली गल कि मैनूं गुरुद्वारे तो बाहर ना कढ़िया जाए, दूजा मैनूं जायदाद विचों हिस्सा दिता जाए, ते तीजी गल जिहड़ी तुसीं श्रोमणी कमेटी बनाई है मैनूं मैंबर बनाओ। झब्बर ने भी, वो भी सियासत खेड रहा सी, टाइम कढ़ रहा सी। उन्होंने कहा भी तेनों हिस्सा मिलेगा, कढ़ांगे नहीं जे तू ठीक रहेगा। ते बाकी श्रोमणी कमेटी पंथ की जमात है। करतार सिंह झब्बर कोल कल्ले कोल कोई अधिकार नहीं किसी बंदे नूं मैं शामिल कर सका, जे पंथ चाहेगा तो। पर इन्हें तकरीबन माझे दे 12 बदमाश कतलों भी जेड़े भगौड़े सन वो बंदे लियादे। रांझा रिखाना ते माछी 3 मुसलमान सच्ची मुची कातल इन्हें लियादे। ये कहंदा भी गलबात उत्तों करो। जिस दिन सारे लीडर करतार सिंह झब्बर, लक्ष्मण सिंह, मास्टर तारा सिंह मजीठिया जां जिन्ने लीडर उस वक्त सन काली लहर दे, श्रोमणी कमेटी दे, जदों स्टेज ते बैठन पहला गोलियां मारियो, पिछों पै जाओ, कुहाड़ियां छवियां नाल टकवियां नाल वढ दिओ। ये सारे मर गए, इस सारी लहर का भोग भी पै जाएगा। ब्रिटिश सरकार चाहती सी कि जे लहर उठेगी तो ये लोग आज़ादी वाले पासे पैर पट रहे।
जे ये मर गए तो कहानी खत्म हो जानी। हुण इस गल का पता सिर्फ महंत दे एक बंदा एक सूया सी करतार सिंह झब्बर दा अवतार सिंह, उन्हें फिर जाके दसना भी सरदार जी काड़ियां कानफ्रेंसा कर दो, तुहाडे ते वड्डण दा प्रबंध कीता है ना। इधर फिर करतार सिंह झब्बर, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल ते सरदार बूटा सिंह लैलपुर, ये सज्जन कट्ठे हुंदे आ रावी तो पार दे। ये कहंदे आ भी जे महंत चाहता है 19 ते 20 फरवरी नूं महंत ने जाना लाहौर, इन्हां ने सिख सनातन कानफ्रेंस रखी है। 10 फग्गन ते 11 फग्गन नूं वैगुरू 9 ते 10 फग्गन नूं इन्हें जाना है। ते आपां एक काम करिए, महंत लाहौर जाए, गुरु हरराय साहिब दा गुरपुरब है, आपां 20 तरीक नूं उत्थे ननकाना साहिब चले जाएंगे। ये अपनी ताक सन, पर इस पासे वाले रावी वाले सिख लीडरां नूं पता ना लगे। प्यारे तैयारी हो गई। उस मैं फिर अर्ज करा, मैं 10 फग्गन तो शुरू करांगा। चलो उस दिन 10 फग्गन 20 फरवरी सी, 21 नहीं सी। मैं तां वार वार इस गल ते जोर दे रहा, हालांकि ऐदकी 21 फरवरी जिहड़ा मनाया देसी दा 10 फग्गन ही सी, उहदा 10 फग्गन ही सी, पर चाहिदा ये देसी महीने की गल कीती जाए। इन्हां ने तैयारी कर ली भी आपां ने करतार सिंह झब्बर ने चलना सी चूड़काने तो, जिथे सच्चा सौदा होया। इन्हें जथा लैके आना सी ननकाना सी। वेख्या जाके ननकाना साहिब दे नेड़े एक नहर है, झाल नूं चंद्रकोट की झाल कहंदे। झब्बर चूड़काने तो आएगा, लक्ष्मण सिंह धारोवाली ते निजामपुर दीना सिंह वाला ते धनू वाला, जिहड़ी मैं किताब दा तुहानूं जिक्र कीता है ना, उस किताब दे विच मैप दिता होया जथा किहड़े किहड़े पिंडां चों निकल के आया शहीदी जीवन च। यह जथा लक्ष्मण सिंह दा ते करतार सिंह झब्बर दा जथा चंद्रकोट की झाल ते इकट्ठा होवेगा, ते जिहड़ा लैलपुर तो जथा आ रहा है, यह ननकाना साहिब दे पट्ठियां ते खलोता होवेगा। तिन्ने जथे अमृत वेले अरदास करके 10 फग्गन नूं ननकाना साहिब गुरुद्वारे विच प्रवेश करनगे। आप सलाह हो गई। फिर पंथ नूं किवें पता लगा? असल च की सी, मास्टर तारा सिंह जी होनी ते तेजा सिंह समुंदरी जी लायलपुर गए सन। ये रस्ते च आ रहे सन। ये गल साडे परिवार ने भी दसी कि साडे बजुर्ग बापू तेजा सिंह चूड़काना ये सारे रस्तां दा प्रबंध कर रहे सन। उन्हें जाके दसिया, मास्टर जी भी ये फैसला सी कर लिया है। फिर उन्होंने झब्बर नूं कहा, तुसीं सानूं चूड़काने स्टेशन ते मिलो। झब्बर नहीं आया, सरदार सुच्चा सिंह जय चकसन चूड़कानी वो आए। उन्होंने इन्हां ने लिख के भेजा, कोई भी जथा पंथ दे हुक्म तो बिना, श्रोमणी कमेटी तो बिना ननकाना साहिब ना जाए। तैयारी उहदी बहुत है। इधर जी ये जथे नूं झब्बर दा जथा रोक दिता। एक सरदार दलीप सिंह साहोवाल, मैं उस दिन जिक्र किया सी, ये बड़ा खानदानी बंदा सी, अमीर बहुत सी भाई दलीप सिंह चीमा। इसने जदों क्या भी रोक दो, 6 सिंघां दे सिग्नेचर होए फिर भी जथा नहीं जाना। दलीप सिंह ने झब्बर नूं रोक दिता। झब्बर ने कह दिता, मैं तां तुहाडे दस्तखत वेख के हुक्म मन के रोक जांगा, लक्ष्मण सिंह नूं कौन रोकेगा। लैलपुर दा जथा रोक दिता, झब्बर दा जथा रोक दिता। दलीप सिंह साहोवाल उन्हें सच्ची जी कहने किड्डा इस तरह छाती ते हत्थ मार के क्या, लक्ष्मण सिंह नूं मैं रोकांगा, जे कुछ हो गया पंथ नूं मैं जवाब देवांगा। दलीप सिंह आ गया। 9 फग्गन नूं मैं शब्द वरता, 19 फरवरी 9 फग्गन नूं रात नूं 8 बजे जथा चलदा धारोवाल तो, जिहड़ा शहीद होण जा रहा जथा। मैं उस दिन गल कही सी, भाई लक्ष्मण सिंह उन्हां दे घर एक बेटा होया सी। इन्हां दी घरों बीबी दा नाम सी माता इंद्र कौर। इन्हां दे घर बेटा होया, 8 महीने दा बच्चा हरबंस सिंह उहदा नाम रखिया, उहदी मौत हो गई सी। उदों बाद इन्हां घर संतान नहीं कोई। मैं उस दिन आपनूं एक अर्ज की सी, एक बड़ी वड्डी गल की भाई लक्ष्मण सिंह जी उस वेले। एक तो प्रचार करते सन कीर्तन करके, तो मैं उस दिन कहा सी कि जिस दिन तरन ताਰਨ भाई हजारा सिंह का भोग पिया, उस दिन लक्ष्मण सिंह ने खलो के कहा सी, धन गुरु अर्जुन देव जी मैं तेरे दर तो सिर्फ मंगण आया, हजारा सिंह के डुले खून ने तेरे घर नूं आजाद करा दिता है, मैं शहीदी मंगण आया, मैं ननकाना साहिब नूं आजाद करा सका। ये तरन ताਰਨ परिक्रमा च भाई लक्ष्मण सिंह बोले।
उस दीवान च भाई लक्ष्मण सिंह दीवान लाते सन, बीबियां दे जथे कीर्तन करते सन। एक बच्चा छोटा जिहा उन्हें कीर्तन किया, बड़ी सुरीली आवाज, ते जदों कीर्तन करके हटिया मैं उसका जिक्र उस दिन किया ते भाई लक्ष्मण सिंह जी ने कोल बुला लिया ते कोल बुला के सीने नाल ला के तू अपने मां प्यो का किन्ना नां रोशन करना, इन्ना सोहना कीर्तन करना पुत्र, तेरे मां बाप कौन? वो बच्चा रो पिया। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल कहते तू रोया क्यों? मैं तेन माड़ा तो नहीं किया। कहता मेरे मां बाप मर गए ने, मैं यतीम हाँ, रोटी नहीं चलती ते मैं शब्द पढ़ना ते पैसे हो जाते आ। भाई लक्ष्मण सिंह ने सीने नाल ला के कहा तेनू मां बाप चाहिए ने, मैनू पुत्र चाहिए है, अज तो बाद तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा बाप हाँ, मंजूर है तेनू? वो मजबी सिंह सी, वैगुरू मैनू लफज कहने पे इस्त्री सुनाने लई, रंगरेटा सी, पर उस वक्त इन्नी वड्डी जात पात दी सी। घर लै गए, उसदा नाम सी मंगल सिंह। उन्होंने घर ले जाके बराबर जो प्रशादा छकाया, कुछ कु लोगों ने विरोध किया, अखीर ते उन्हें सब कुछ किया ना ये मेरा पुत्र है, मैं दा बाप। सच्ची मुच्ची उस बच्चे ने बड़ी सेवा की भाई साहब की। भाई साहब ने उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्होंने फौज में भर्ती करा दिता। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के ककारां नूं बहुत मुहब्बत करता सी मंगल सिंह। उन्हें फौज किरपान थले पा ली, उथे केस चल गया, कोर्ट मार्शल होया उन्होंने। ग्रंथी झूठी गवाही दे गया जी नहीं सानू किरपान की कोई जरूरत नहीं सिखा नूं। फिर उन्होंने कैद हुई। भाई मंगल सिंह जो कैद कट के आया, फिर पंथ ने पदवी दी किरपान बहादुर मंगल सिंह, ये पदवी दी सी किरपान बहादुर मंगल सिंह। भाई लक्ष्मण सिंह जिदन तैयार होने लगे, मैं फिर बेनती करांगा 9 फग्गन नूं दोपहरे ना तैयारी कर लीए भी असीं रात नूं अज तुरना है। केसी इशनान किया, जवान बड़े सन उन्होंने दे जिहड़े अगों जी ने दसदे ने बड़े जवान, उन्हां नूं कोई जरीला कीड़ा नहीं सी असर करता। उडना सप पग च लपेट के लियाउंदे सन। याद रखियो, उन्हां दी हिस्टरी पढ़ियो, उन्हां नूं सप डंग मारे ते असर नहीं सी हुंदा बॉडी उत्ते। बिच्छू जिहड़े सन ना, ठूवे जिहड़े ने, एक बार किसी ने कोई महात्मा लाने लगे, गोरे नूं हत्थ च बिच्छू करे ठूआ फड़िया, आंजी बढ़ा दिता, वो बंदा डर के भज गया। उन्हां दी बॉडी ते जहर नहीं सी असर करता। ये बकायदा उस किताब च लिखा होया। सप पकड़ के लियाने, न्योल पकड़ के लियाने। भाई साहब ने केसी इशनान किया, तैयारी की। किरपान सिंह जिहड़ा मंगल सिंह किरपान बहादुर ये भी आया सी, इहदा विआह सी ते मकलावा लैके आया सी। साडे पिंडां च पहिलां पता है जी, हुण तां नहीं वो रस्मां रहीआं, मकलावा पहला कई महीनों बाद भी आउंदा सी ते पिछले सालां च एक दिन बाद आउंदा हुंदा सी। पहला डोली, फिर मकलावा, फिर तरवेंदा कहंदे सन पिंडां च, वो तीजे फिर इहनूं तरवेंदा कहंदे सन। मेरा ख्याल हुण नहीं याद किसी नूं चीज़ां। वो मकलावा लैके आया ते भाई साहब तैयार, लक्ष्मण सिंह दस्तार बन्नी, खूंडा हत्थ च फड़िया ते मंगल सिंह पुछदा बेबे अज बापू किधर तैयारी करी बैठा? उन्हें कहा पुत तेरा बापू अज ननकाना साहब शहीद होण चलिया। देखो मकलावा लैके आया, कहता बेबे दही है, मैं भी केसी इशनान करके बापू नाल जाऊंगा। ओदी वाइफ ने, ओदी घर वाली ने तरले मारे, ओदा सस सौरा वो भी आए सन। उन्हें रोकया, जदों घर वाली ने कहा मैं तेरे लड़ लगी हाँ, वो कहता चेते रखी मैनू रोटी नहीं सी मिलती, मैनू इस बापू ने गले न लाया सी, इन्हें मैनू गुरु गोबिंद सिंह दे लड़ ला दिता, मैं ये तो बिना जी नहीं सका। लक्ष्मण सिंह ने इशनान किया, नाल तैयार हो गए। इथों फिर जथा, मैं उस दिन क्या सी अरदा हुक्मनामा आया सी, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। ये तुक आउंदी है ना, तन मन काट काट सब अरपी, शुरू हुंदा कोई आण मिलावे। इथों फिर जथा रात नूं 8 बजे चलदा है ते 9 बजे निजामपुर देवा सिंह वाले पहुंच जाता है। 1 घंटे का सफर है जी। उत्थे फिर संगत नाल होर तैयार हुंदी, फिर इन्हां नूं दुध पानी छकांदे आ ते इत्थे फिर क्या जांदा भाई साहब जी तुसीं दोबारा अरदास करो, असीं भी तुहाडे नाल चले आ इस जथे दी भी। फिर भाई लक्ष्मण सिंह दूजी अरदास इत्थे करदा है, सच्चे पातशाह तेरे घर च आ रहे हैं, तेरे नाल वादा करने तेरी हजूरी च कबूल नहीं बोलांगे, खत नहीं चुकांगे, गोलियां वजदे टुकड़े टुकड़े हो जाए, सी नहीं करांगे पर आजाद हो जाए तेरा घर। इत्थे फिर हुक्मनामा आ गया, कोई आण मिलावे
ਉਹ ਚਿਤੋਕਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਰਬ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਜਰਗ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਥਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਬੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਕਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਚੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਲਦੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਲਵਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਰੁੱਖ ਤੇ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਹੱਥੇ ਜੇ ਸੀ ਬਰਸ਼ਾ, ਅਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਬੋਲੀ ਵੀ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਬੋਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੇਰ ਹੈ। केर नू शेर कहते होंगे, शायद केर है ना, केर दा लफ्जी अर्थ शेर है। ये शेर है और मैं केर हूं। अब देख गुरु गोबिंद सिंह का केर शेर का मुकाबला कैसे करता है। शेर दहाड़िया, जदों वो गर्ज के अगे आया, भाई केर सिंह दे हाथ विच बरछा सी, ने पूरे जोर नाल इहो जिहा निशाना मारिया, इहदे गले दे विच शाह रग वढ के रख दिता। वो जिहड़ा बरछा सी ओनू इन्ना क दबिया, शेर तड़पदा रहा, पूरा जोर लाया, इन्हें बरछा छड्डी नहीं, गड्ढ के रख दिया, उत्थे ही मर गया शेर। वो गोरा थले, उन्हें फिर फोटो खिंची, उस किताब च फोटो भी है, जी शहीदी जीवन किताब है ना, उस फोटो भी है। ये पैदा फिर जदों विआह होया, जिस बीबी नाल ओहदा नाम सी रतन कौर, वो असल च विडो सी, विधवा हो गई। मैं थोड़ा जिहा इस बच्चे का जिक्र तां करना चाहता सा, इस बच्चे नूं बड़ा रंग चढ़िया सी सिੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਤਨ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਲੇਗੀ, ਵਿਡੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਰਤਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਤਨ ਕੌਰ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ रूं दियां पूणियां दुध च प्यों प्यों के नूं पियांदी, उन्हें पालिया। दादी भी ये सी ते मां भी ये सी। हुण मां दादी ने साखियां सुनानियां, प्यो ने साख के। भाई साहब अमृतधारी सन, नित नेमी सन, अखंड पाठी बड़े कमाल दे सन भाई केर सिंह जी। उन्हां दे घरों बीबी रतन कौर कमाल दा शुद्ध पाठ करना। उन्हें बच्चे नूं जदों सुनाना, निक्का बच्चा सी, उन्हें पुछना, उदों छपियां नवीं नवीं फोटोआं, ये बच्चे कौन है? उन्हें सौंदियां दसना, पुत्तर साहिबजादे ने। प्यो ने भी दसना, दादी ने भी दसना, शहीद हो गए। एक दिन प्यो नूं पुछदा, शहीद कौन हुंदे ने? वो कहंदा, पुत्तर शहीद कदी मरदे नहीं। कहंदा, जिहड़ा मेरा दादा मर गया, भाई केर सिंह दे फादर दी डेथ, वो मर गया। वो कहंदा, नहीं पुत्तर, आम लोग मर जाते ने, शहीद कदी मरदे नहीं हुंदे, जिउंदे रहिंदे। न्याणा कहंदा, मैं नहीं मरना, मैं शहीद होवांगा। याद रखियो, ये बच्चा अखीरले समय तक कहंदा, मैं मरना नहीं, मैं शहीद होवांगा। ये इको रट लान लग पिया, मैं शहीद होवांगा। जदों गल चलनी, बेबे मैं मरना नहीं, मैं शहीद होना है,
ਉਹਨੇ ਟਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ ਜਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਸਤਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲੇ, ਘਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਊਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊੜਾ ਉਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫੋਟੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਉਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਉਰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਐੜਾ ਅਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਐੜਾ ਅਸ ਕੀਤਾ, ਅਸਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਬਾਪੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਾ? ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਚਲੋ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਟਾਲਦੀ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਕਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਾਪਿਆ, ਠੀਕ ਉਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪੀੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਪੀੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੱਸਦਾ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ 10 ਫੱਗਣ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਥਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥੱਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ 3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੁਕਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 13 ਰੁਪਈਏ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇ 18 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣੋ
भाई टहल सिंह ने कहा भैने असी हो जाना शहीद। 18 रुपये बड़ी अहमियत रखते सन। साडे भोग उत्ते लंगर की सेवा विच पा दिया जी। एक निहंग सिंह दे कोल गड़वा सी सरबलो दा। उन्हें गड़वा दे के क्या बीबा धीए जिस दिन साडा भोग पेगा उस दिन संगत नूं इहदे नाल जल छकाया जी। इधर महंत जा रहा सी लाहौर। एक गड्डी च चढ़े नूं एक मिरासन ने कह दिता महंता किधर जाना पिया? नीलियां पग्गां वाले बुचियाणे आ गए। महंत ने चलदी गड्डी चों छाल मारी आ गया। सारी रात तैयारी हुई। तेल दे पीपे लकड़ां बरूद सब कुछ पहला जमा सी। तकरीबन 5:45 बजे 5:43 जो साडे बजुर्ग दसदे सन कि 5:43 ते जथा अंदर प्रवेश किया। 5:45 कहने अंदर वड़दे ना बूहे बंद कर ले। एक बंदा उत्थे बैठा सी पाठ कर रहा सी। भाई लक्ष्मण सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठ गए। भाई टहल सिंह बाहर सन। महंत बैठक च बैठा सी। इन्हें फिर तैयारी पूरी की। शराब न सारे धुत सन। मंत दी अखां लाल सन। इन्हें फिर घोड़ी ते चढ़ के अपना मूँह महंत ने बन्निया। अंदर शब्द पढ़ रहे आ। पहली गोली भाई टहल सिंह की छाती च वजी सी। मैं सिर्फ थोड़ा जिहा कह के तिकाब बनाई रखियो। भाई टहल सिंह डिगे आ। उत्तों गोलियां की बाछड़ की। जदों डिगन लग पे जख्मी हो गए। फिर थले उतर के जिहड़े बंदे सन उन्होंने लकड़ दियां मुड्डियां उत्ते रख दे तड़पदे हुए सिखां दे टुकड़े कीते। इन्हां नूं वड्ढिया सारियां। भाई लक्ष्मण सिंह जदों गोली वजी जी भाई साहब दे गोली पहला उन्होंने वजी। पहला गुरु ग्रंथ साहब नूं गोली जदों लगी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब नूं कलावे च लै गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोले स्वरूप है ते मैं इन्हां नूं सब नूं बेनती करांगा। 3 तख्त ने अकाल तख्त साहब इत्थे दमदमा साहब आनंदपुर साहब घट्टो घट इस साल उस भीड़ दे प्रकाश करके संगतां नूं दर्शन जरूर कराओ। एक सदी हो गई है। मेरी बेनती है ये जरूरी है संगत नूं पता तो लगे स्वरूप सी। जदों ने गोलियां मारियां भाई लक्ष्मण सिंह ने कलावे च लैके वो क्या कहंदा आवाज दी मनता गुरु नूं गोलियां ना मार। जदों ये शब्द कहा उन्हां दियां दोनों बावां साडे दसदे ने अरक तो थले छलनी छलनी हो गई। पिता ही दस रहे सन उन्हां दी गोली फिर छाती दाढ़ी तो थले गोली मारी। कट्ठियां गोलियां जदों वड्डियां वैसे तो शहीद हो उत्थे हो गए सन। चलो बाद दस दिया। फिर भाई साहब नूं वालां तो फड़ के खिंच लिया। इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया तो खिंचिया बाहर लिया के पटका के मारिया। जिवें पड़ पड़ के मारिया थले। फिर जंड को लिजा के कुछ लिख दिया भी सिर वड़ दिता। भाई साहब की तो पछाण ही नहीं हुई लाश की। जंड नाल बन के इन्हां नूं साड़ दिता गया। तुसीं हिसाब लाओ हुण ते नहीं मैं कि गया ननकाना साहब मैं पूछया भाई साहब कहंदे ने खैर नहीं 10 दिन साडे बजुर्ग भी 16 इंच डूंगा 16 इंच लम्मा ते 15 इंच चौड़ा चुबच्चा सी जिथे पैर संगत होंदी सी पूरे दा पूरा खून नाल भर के वगदा पिया सी। पूरे दा पूरा खून नाल नितर के वगदा पिया सी। आ जिहड़ा बच्चा दरबारा सिंह है इहदे बाप नूं किसी क्या भी काम करो ये निक्का न्याणिया नूं अलमारी जदों तुसीं ननकाना साहब जाओ अलमारी जरूर देखो। उन्होंने गवाही नहीं गोलियां भी जिथे वजियां सांभ के रखे। वो अलमारी च बच्चे नूं कहंदे बंद कर दिओ न्याणा है। इनू जदों अलमारी च बंद किया तो ये अंदरों बोझी जे बापू मैं तेरे नाल शहीद होना है। उधर प्यारिओ सिंह शहीद कर दिते 7 बजे तो लैके तकरीबन 4 बजे तक। चलो ये तो कहानी निबेड़ देंदे 1 मिनट घंटा गोली चली जी। 7 बजे तो 4 बजे तक गोलियां नाल टुकड़े किए। भाई दलीप सिंह जिन्हें छाती ठोक के क्या मैं रोकांगा लक्ष्मण सिंह नूं। बड़े जीवन वाले बंदे सन। वो फिर नंगे पैरी भज्या उत्तम सिंह के कारखाने चो। मैं पंथ नूं की कहांगा मैं तो वादा करके आया। ये जदों आए तो महंत घोड़ी ते चढ़िया। भाई दलीप सिंह नंगे पैरी आवाज दे के कहने महंता ना पाप कर जुल्म करना पे तेन बख्शवा देंगा ना मार। उन्हें आंदे अखां लाल सिंह कहंदा दलीप सिंह
तू इन्हां दा कि मेरा है? ये शब्द उन्हें कहा। तू अकालियां दा है कि मेरा यार? कहा जाता उहदे नाल मित्रता सी। तू इन्हां दा कि मेरा है? दलीप सिंह छाती ठोक के कहंदा मैं लक्ष्मण सिंह दा वां, मैं तेरा नहीं। इनू फिर गोली मारी उत्थे, दलीप सिंह नूं गोली मारी। नाल आवा है वखरा शहीदगंज भाई दलीप सिंह दा। इन्हां नूं फिर उस भट्ठी सट दिता। उत्ते सिर्फ भाई साहब दी सरबलो दी माला मिली सी ते एक कड़ा मिलिया सी, कृपान। अंदर प्यारो 4 बजे तक 10 फग्गन नूं, प्लीज नोट रखियो, 10 फग्गन नूं फिर भाई उत्तम सिंह ने तारां पाईयां। फिर करतार सिंह झब्बर नूं चूड़काने पहली जदों तार गई उच लिखिया लक्ष्मण सिंह ते दलीप सिंह दा कतल हो गया। तार च ही लिखिया। सानूं 10 दिन जो असी घरों सुनिया जी, कहंदे फिर चूड़काने विच झब्बर ने अठियानी दे के, उदों बड़ी कीमत सी, पूरे पिंड दे विच ढंडोरा पटवा दिता कि जिन्हां जिन्हां दे घर विच पग बन नौजवान मुंडे ने, सारे मुंडे इकट्ठे होके किरपाना छवियां कुहाड़ियां गंडासियां लैके आओ। ननकाना साहब सिखां नूं मार दिता गया है। ये फिर चलते ने जिन्हों उदों 20 फरवरी कह लो। 10 फग्गन नूं साका हुंदा है, 10 फग्गन नूं फिर जथा तुरदा है। ये फिर पहुंचते ने जी 11 फग्गन नूं सवेरे। उधर 21 फरवरी हो गई, 11 फग्गन नूं पहुंचते आ जिहड़ा बच्चा सी मैं उसकी जरूरत तुहानूं दस दियां। मैं उस दिन भी कहा ये जदों फिर सब कुछ हो गया ना, वड्ड दिता, टुकड़े हो गए, फिर ये सारे समेटन लग पे जिहड़ियां लाशां पईयां गोली नाल। उंज तां वैसे जिउंदियां नूं 2 सिंह ने जदों चिखा सट्टे, वो उठे इक्को दम लकड़ां तो, उन्हां नूं उठदियां नूं छवियां नाल कट कट के फिर दोबारा सट दिता। फिर ये खून धोण लग पे, शराबी संसारे। इत्थे फिर एक सिख सी, ਉਹਦੇ गर्दन दे वज्जा सी सट ते खून वग रिहा सी। ਉਹਨੂੰ एक निहालू सी, निहाल सिंह कहंदे सन। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ की खट्टिया ननकाने आके? ਉਹਨੇ बहुत ऐसदा किया, कहंदा त्रे बड़ी लगी, पानी पिया देगा। गर्दन वड्डी सी, खून नाल भिजा पिया, ਉਹ पानी लैन चला गया। इन्हां दा एक लद्दू बदमाश सी, लंगड़ा लद्दू कहंदे सन। ਉਹਨੇ वेख्या पानी पियान लगा, कहंदा ए सिखां नूं पानी पियाना? ਉਹ ਨਿਹਾਲੂ कहंदा इहने पानी मंगिया है ना। ਉਹਨੇ जी छवि नाल मार के पानी दा कौला परां सटिया। ਉਹ सिख कहंदा एक काम कर, जे पानी नहीं देना मेरी गर्दन ला दे। फिर इन्हें टप मार के गर्दन ला दी। महंत दा एक सहपाठी सी देवा दास, ਉਹਨੇ फिर जदों खून वग रिहा सी ना, देखो मैं कहना इस साके नूं याद रखो सिखो, बड़ा दर्दनाक जे। ਉਹਨੇ फिर खून लगदे कोई तो अपना भर के उंगलां खून चट्टिया सी, कहंदा अकालियां दा बीज नाश करके अज रख दिता। ये बच्चा जदों सफाई करन लग पई, कोई बचिया। उंज वैसे स्टेशन कोल भी खेतां च भी सिख मारे ने। ये जो सफाई करन ते अलमारी चों आवाज आए बापू मैं शहीद होना है, बापू मैं शहीद होना है। वो सफाई करने वाला डर गया। वही लद्दू बदमाश पुछदा सफाई क्यों नहीं करता? कहंदा अलमारी चों बलां कोई बोल दी है। वो कहंदा इत्थे लक्ष्मण सिंह वर्गियां बलावां नूं खपा दिता है। किहड़ी बलां होए? भाई साहब लिए शब्द वरते, कहंदा लक्ष्मण सिंह वर्गी बलां खपा दिती। बूहा खिलिया ते 9 साल का बच्चा, उस बच्चे नूं फिर बलदे कोई लांबू ते सट्टिया गया सी। ओहदियां बाहां पकड़ के कुछ बजुर्ग साडे, चलो इतिहास हुण हर एक ने अपने ढंग नाल लिखिया, एक सदी अजे हुई है तो डेट का फर्क पई जांदा है, ते बनेगा की? उन्हें फिर की कुछ कहने टुकड़े किए सन, कोई कहने बलदे हुए भांबड़ च बच्चा कहे मैं शहीद होना है, बापू ने शहीद होना है। वो शराबी गुंडे कहने चल फिर जिथे बापू गया तू उत्थे ही जा। इनू फिर चिखा सट्टिया गया। 11 फग्गन नूं शाम तक ननकाना साहब, चूड़काना, जिन्ना विरकां दा इलाका सी तकरीबन सारा इकट्ठा होके आ गया। 12 फग्गन नूं वाहिगुरू जी 11 नूं ये पहुंचदे आ। 10 नूं साका हुंदा है, 11 नूं ये पहुंचदे आ। DC आउंदा है, मिस्टर करी, मिस्टर किंग। अरे बजुर्ग दसदे ने साडे पिंडां च इन्हां दे वहण पांदियां सन बीबियां, साडे बच्चियां नूं, साडे सिखां नूं मिस्टर करी ते मिस्टर किंग ने मरवाया। DC सी, कमिश्नर सी। फिर जी 200 गौरा फौज ते कुछ हिंदुस्तानी मशीन गन्नां नाल लाहौर तो बुलाए गए। दरवाजा बंद हो गया, मंत निकल गया।
इथों मंत जाता बाल लीला, बाल लीला वाले मंत नूं देंदा रुपये, इनू कहंदा असीं ये कुछ कर दिता, साडे मगरों केस ते पैसा लो। पर याद रखियो इकल्ला महंत नहीं, ये बिल्कुल गोरा हुकूमत की शह सी। मैं नफरत नाल नहीं कहंदा, कट्टर आरिया समाजियां दा भी पूरा वो शह सी। इथों महंत निकलदा है, झब्बर लैके आउंदा है। उंज ते सिख हज़ारां सन, 2200 विरकां दा जथा सी, जिस नौजवान सन अधकड़ उम्र दे। इन्हें फिर 1100 दे बना दिते, 1100 एक पासे, 1100 एक पासे, 2200 सी। एक घोड़ी ते चढ़िया सी झब्बर करतार सिंह, इहदे मूंह सीटी भी सी। इन्हें फिर पहली तकरीर कीती सी भी एक काम करियो, हुण सतनाम वाहिगुरू ते क्या जे क्या, पर जदों कोई सामने आ जाए ਉਹਦੇ टुकड़े करने ने, भावें गोरा होवे, डीसी होवे, जो मर्जी होवे। जदों ये अगे वधिया जथा ते उत्थे फिर सरदार बहादुर महताब सिंह सरकारी वकील आया। वो कहंदा झब्बर साहब रुक जाओ, अगे मशीन गन वाले गोरे फौजी ने। झब्बर कहंदा छड्ड परां तू इन्हां मशीन गन्नां नूं, तू आ 200 कहना, याद रखिए 200 इथों खाली नहीं जाएगा। उन्हें क्या रात इंतजार करो। झब्बर कहंदा नहीं, साडियां दे अंदर टुकड़े पए होए, पता नहीं की कुछ वापरिया। पिछों इको दम कहंदे ने आकाश पाड़वी आवाज किसे जकारा छड्डिया कि जथेदार जी हुण रुको ना, गल्लां बड़ियां हो गईयां। जदों झब्बर अगे वधन लगा, फिर कहंदे ने उन्हां नूं कहा गया भी तुसीं 2 मिनट रुको। चाबियां सरदार हरबंस सिंह अटारी नूं दित्तियां, ये 77 सन। तुसीं रुक जाओ, अपनी कमेटी बना लो। उस वक्त सरदार हरबंस सिंह जी कहने लगे इसकी कोई कमेटी वखरी नहीं, श्रोमणी कमेटी बन चुकी है। पर 7 सिंघां दी सिखां दी कमेटी बनाई गई, गोरा फौज पिछे हटा दी गई। 11 फग्गन नूं संध्या वेले 21 फरवरी नूं 11 फग्गन नूं शाम नूं सिर्फ दरवाजा खोल के कोई सिख जांदे, सारी संगत नहीं जाती। जदों बूहा खुलदा प्यारिओ, वेखण वाला दृश्य खतरनाक। इन्ना थां थां ते कोई 2 इंच कोई 4 इंच मास दे टुकड़े सन। कई केसां दियां लिटां दे नाल मास जुड़िया सी। कंगे, करपाना, कड़े, खोपड़ियां, उंगलियां, हाथ। दरवाजा बंद कर दिता। 12 फरवरी नूं वाहिगुरू 12 फग्गन नूं डीसी भी आउंदा है, कमिश्नर भी आउंदा है। फिर दरवाजा खुलदा संगत वास्ते। कहंदे ने डीसी अंदर गया, संगतां ने उत्थे कह दिता भी तुसीं साडे नाल कराया सब कुछ। कमिश्नर नूं कहा, जदों अंदर गए ते आ सारे इकट्ठे हो, जी ते कोई है नहीं सी और दिसदा ही नहीं सी, जिउंदा ते कोई है नहीं। सरदार नारायण सिंह उस दिन नाल सन, जिहड़े ननकाना साहिब दे रहे मैनेजर साहब। उन्होंने कहा भी असीं जो देखिया 4 लाशां सन, 119 खोपड़ियां सन, मास सी थां थां ते हड्डियां दे टुकड़े सन। आ जिहदी मां भाई केर सिंह दी मां दरबारा सिंह दी दादी भी गई। ये फिर विचारी लभदी फिरे भी किते छोटियां उंगलां मिल जाणियां, मेरा पोता सब तो छोटा सी। हाँ, इनू जिथे टुकड़े पए सन शहीदां दे, उत्थों एक लत्त लभ गई। वो लत्त की पहचान तां हो गई कि जदों केर सिंह फौज में सन ते एक रात सज्जी लत्त बर्फ विच रहन करके जिवें फलवैरी हुंदी है ना, इस तरह स्किन चिट्टी हो गई। पुत्र की लत्त की पहचान सी। उस माई ने फिर लत्त फड़ लई। प्यारिओ 12 फग्गन नूं उस माई ने लत्त नहीं छड्डी। जदों किसी पुछना तो कहना है मेरे पुत्र केर दी लत्त है जिहड़ा शेरां दा शिकार करदा सी। फिर नाल कह किते कोई हत्थ पंजा लभ जाए, छोटे उंगलां, मतलब ममता प्यार तो है ही ना। उस दिन फिर 12 फग्गन नूं शाम नूं बंद कर दिता दरवाजा। 13 फग्गन नूं फिर गवर्नर आउंदा है। गवर्नर जदों अंदर आउंदा है, तुसीं वेखो बंदे दा दिल ते फिर पत्थर नहीं रहिंदे। जिस बंदे च कोई धर्म है, वो जदों अंदर वड़दा है, फिर झब्बर उहदी बांह फड़दा है। उहदा गुस्सा भी कीता अंग्रेज ने, उहदी बांह फड़ के कहंदा साहब हुण इंसाफ करियो, कीता सरकार ने ते कराया महंत तो है। उन्होंने फिर पहलों वेंदा जी बाहरों वेख के मुड़न लगता। झब्बर बांह पकड़ के कहंदा नहीं
अंदर चलो, असी एक भी चीज नहीं हिलाई। वो फिर सिर दे उत्ते बंदा रुमाल, बूट ला के जो अंदर जाता है, बाहर लंघदे सच्ची मुची का सारा रुमाल जिहड़ा है अथरवां नाल भिजा होया सी गवर्नर दा। कुछ बोलिया नहीं। उस तो बाद जदों स्टेशन गड्डी वाहिगुरू गड्डी चढ़दा अपनी ते, उदों फिर सरदार सुंदर सिंह मजीठिया झब्बर खास करके अंदर जाता है। फिर उन्होंने कहता साहब ये बहुत जुल्म होया, इहदा इंसाफ होना चाहिए। उस तो बाद फिर जी संस्कार लिए इकट्ठे किए गए। मैं उस दो गिनती सानू मिली 119 खोपड़ियां, अंदरों खोपड़ियां कह रहे हैं, चेहरे नहीं पहचाने गए। 7 खोपड़ियां बाहरों भट्ठी भी जिथे भाई दलीप सिंह ते वरियाम सिंह नूं सट्टिया। 119 खोपड़ियां अंदरों, 7 खोपड़ियां बाहरों, 4 अधशरियां लाशां, पहचान नहीं सी हो रही। उस तो इलावा फिर जदों संगत इकट्ठे, फिर एको शब्द पढ़ रहे सन, मरूं तां हर कै दुआ। ये इकट्ठियां कर करके ना जेड़े हड्डियां इकट्ठियां कीतियां, ओदे जी 10 टोकरे भरे गए सन वड्डे। 10 टोकरे हड्डियां दे, 3 टोकरे निक्के कीमा कीते मांस दे। उंज मैं चलो स्टेज तो कहना अजे वो अस्थियां थले ने। संस्कार तो बाद अस्थियां किते लैके नहीं गए। मैं सिंह साहब नाल किते गल करांगा, वो तहखाने च ने ननकाना साहब थले, ਸਰੂਪ जरूर असीं ले आंदा इत्थे। वो फिर सारी चिखा एक च नहीं गई। जे ननकाना साहब गए उन्होंने पता जंड दे नाल सारा बनया था। उत्थे फिर चिखा चिन के पहला 4 लाशां रखियां, फिर 126 खोपड़ियां रखियां। उस तो बाद 10 टोकरे खड्डियां दे, 3 टोकरे मांस दे पाए। चिखा बड़ी वड्डी सी। फिर भाई जोध सिंह जी बोले, जेड़े वाइस चांसलर सन, इन्हां अरदास की। उस तो पहला जेड़े शब्द बोले, क्योंकि जड़ियां नुकतियाई साडे बंदे ठांदे फिरदे ना माइकां ते, याद रखियो बाइबल जिन्ना पढ़ी है, मैं किसी धर्म ग्रंथ ते अटैक नहीं करता, एक स्टोरी है ना घूमी जा रही है। वो सिखो आप प्रचारक जे साडे प्रचारक इतिहास ते शक करन लग पैणगे, अटैक करनगे ते बनेगा की। 1921 तो पहला यह प्रचार किया गया कि जेड़े सिखा रोज कहते खोपरियां लुआइया, चरखड़ियां ते चढ़े, बंद बंद कटाए, किमें किमें होए, कहते झूठ है, हो ही नहीं सकता, साइंस नहीं मानती, यह नहीं मानता। उदों जो सारी चिखा भरी गई तो लकड़ा नहीं रखन दित्तियां जोध सिंह होणां ने। उन्हें फिर तकरीर की, कहन लगे साध संगत जी असी 4 दिनों तो अपने दे टुकड़े लैके बैठे हुए, क्योंकि 10, 11, 12, 13 चौथा दिन हो गया ना। 4 दिनों तो टुकड़े ते खोपड़ियां लैके बैठे हैं। अज असीं हुण संस्कार कर देना, पर जिन्हां लोकां नूं साडे सतगुरां दे सिखां दे इतिहास ते शक सी, असीं होर भी 2 दिन वेट कर सकने। तुसीं आके देख सकते हो जो साडे बजुर्गां ने कहा अज सिखां ने करके दिखाया है। जो उन्होंने तारे वरते उन्होंने विखाया। उत्थे फिर चिखा नूं अग लाई गई। हुक्मनामा लिया महाराज दा। हुक्मनामा आया वडहंस महला 5वां, जो लोड़ींदे राम सेवक सही कांडिया। जदों ये स्वरूप कोल गए ना, उत्थे हुक्मनामा सी शहीदी बीड़ तो। यह शहीदी बूड़ दा नहीं सी, ये दूजा स्वरूप सी। जदों दरवाजा खुलिया, भाई हीरा सिंह फरूकियां वाले उन्होंने रुमाल चुकिया जिथे भाई लक्ष्मण सिंह का खून लगा सी। उदों हुक्मनामा लिया सी, तप तप लोय लोय हाथ मरोरूं, बावल हुई सोशो लोरूं, तय शह मन में किया रोष, मुझ अवगण शह नाही दोष। फिर कमाल दी गल, जदों लांबू निकलिया फिर ओदे थले मते पास किए गए। ओदे चानण च मते लिखे सन। श्रोमणी कमेटी दीवा शहीदां दी चिखा दे चानण च महंत की सजा 5 अप्रैल नूं सारियां थावां ते अखंड पाठ साहिब रखे जान। उस दिन सारा सिख जगत कालियां दस्तारां बन्ने। मैं आप नूं बेनती करांगा, उस साके ने सच्ची मुच्ची सिखां नूं हलूण के रख दिता सी विदेशां तक। उन्हां शहीदां ने अपना खून डोल के, हाँ श्रोमणी कमेटी ने जिस दिन सब कुछ हुंदा बना, बिल्कुल जिहड़ा मैंबर बने, सब तो पहली गल
ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।